students, this is my 10th video of bookkeeping and accountancy for SYJC students of Maharashtra as per revised syllabus from 2021. Students, hope you are doing good in studies. Now, as I told you in the last video that I'm going to start with the practical problem solving of partnership final account. Right, so today we are going to start with our first question of partnership final account. Now, hope you must have recorded all the theory part of the partnership final account as I told you to note down in your notebook. Okay, so let us start with our first question. Students, please note down the question in your notebook. You have to work little hard because as we know that we does not have a textbook, and without textbook we cannot solve the partnership final account, right? Because in this question we have to more emphasize on marking. If you'll do the marking properly, you will be able to solve the question properly. Okay, so pause the screen of your video and note down the entire question. Hope you must have recorded the entire question. Now let us start with the first question and marking of it. Now Daya and Shama are the partners sharing profit and losses in the ratio of 1:1. So 1:1 is the profit sharing ratio. From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. Okay. Now student, here they have not mentioned that we are supposed to prepare the partner's capital or current account. So how will come to know that which method of question is this? Okay. Now you can just look at the trial balance. If there is a current account balance is given, so just look it on the debit side. Is there any current account balances given? No. On the credit side, no, because current account could be a debit balance or a credit balance. So if the current account balance is not given, so that means it is a fluctuating capital method. Okay. Now in my 6th video I have told you that it is not compulsory to make a capital or current account separately, but it is advisable, right? If we'll prepare the partner's capital current account separately, so there will be less chances of mistake, and in further topics also it will help us. Okay, so now this is the question of the fluctuating capital method. So here we will prepare the partner's capital account. So our format will consist of trading account, then profit and loss account, then partner's capital account and balance sheet. Okay, I'll show you the format also how to prepare it. Now let's start with the marking of the question. Now when you will mark the question, okay, like for example if it is a trading account debit side, so I will mark TD, and if it is profit and loss debit side then PD, for asset A and for liabilities L, and trading account credit side TC and P&L credit side PC, and for partners capital account PCC, that is partners capital credit side, or partners capital debit side then PCD. Okay, so I'll keep on saying this. Okay, now first thing is stock, that is 1st April 2018. So this is opening stock. Always the stock which is given the trial balance will be opening stock. So opening stock will go to trading account debit side. Alright, then bills receivable will go to asset. Wages and salary. The first word is wages, so it will go to trading account debit side. Okay, then sundry assets will go to assets. Okay, bad debts will go to P&L debit side, and I will add one more letter, that is F, that is formula, as I had already taught you bad debts formula in video number 8. So related to bad debts, everything will go to formula. Okay, then purchases will go to trading account debit side. Motor car will go to assets. Machinery, assets. Audit fees, P&L debit side. Now audit fees का मतलब क्या होता है? Now accountant जो होता है वो बिजनेस में यानी कि ऑफिस में रह के अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, बट जो एक सीए होता है, प्रोफेशनल पर्सन, who comes to the office at the end of the year to check the books of accounts से properly आपने बनाए हैं या नहीं as per the rules and regulations, तो उनको हमें जो फीस देनी पड़ती है उसे क्या बोला जाता है? ऑडिट फीस. Now sales return. Now sales return will be minus from sales. Okay, so I will write minus sign and S, that is sales. Now here I will put a tick mark. Okay, what kind of tick mark I will put over here? यानी एडजस्टमेंट के लिए, जिसमें से भी हमें कुछ प्लस या माइनस करना है, राइट? सो यहाँ पे हम लोग कुछ नोट कर देंगे, मार्किंग कर देंगे. यू कैन पुट अ डॉट, यू कैन पुट अ स्टार, यू कैन पुट you can put a right, anything you can put as a sign whichever is comfortable for you.
ताकि उससे हमें पता चले कि वो वैल्यू हमें इनर कॉलम में लिखनी है, उसमें से कुछ प्लस माइनस करना बाकी है, राइट। देन नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट साइड में दिया है तो P&L डेबिट साइड। बिल्डिंग इज योर एसेट। कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक खोला है तो ये हमारा क्या है, एसेट है। 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज आर एसेट। नाउ लास्ट लेक्चर में मैंने हिडन एडजस्टमेंट्स लिए थे, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द हिडन एडजस्टमेंट। See over here the rate of interest is given 10%, but the date is not given. So if the date is not given, that means it is, the investment is with us from the beginning of the year. Okay, now just once check on the credit side, is there any interest values given on investment? No. So that means full 10% is outstanding. Okay, so on 20,000 we will calculate 10%. So what will be the amount? 2,000. So 2,000 is the value of interest which is still receivable. It is outstanding income. So here there is an adjustment. Okay, so I'll put a tick mark. And what will be the effect of the same? Now this is a hidden adjustment. So I have to mention the effect here in only, because these adjustments are given in the word, format. But here it is not given in the word format. So I'll forget. So better to write over here. Okay, what will be the effect of the interest on investment due? I had taught you in the last lecture. Okay, first effect will go to asset because it is outstanding income for us, and second effect it will go to profit and loss account credit side. Okay, because it is income for us. Okay, hope you must have understood this. Next is advertisement. Advertisement will go to P&L debit side. Now here also in the bracket some information is given. Paid for 9 months. So here again there is a hidden adjustment. So I'll put a one tick mark. Now paid for 9 months. Now we prepare the books of accounts for 12 months. Okay. So what it means? It means 3 months is outstanding. Okay. So this is an outstanding expense. So what will be the effect of the outstanding expense? The first effect will be add to advertisement, because outstanding always add to advertisement, and second effect will go to liabilities. Okay, got it? Cleared with this? Right. Next is royalties. Now royalties, only royalties word is given, so it will go to trading account debit side. If it would have been given royalties on sales, then वो कहाँ पे जाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे जाता. ठीक है, सो डेबिट साइड का मार्किंग हमने सब कर लिया है. ओके, देन नेक्स्ट इज रिजर्व, जनरल रिजर्व. नाउ जनरल रिजर्व मैंने बैलेंस शीट फॉर्मेट में सिखाया था. इट विल गो टू लायबिलिटीज. नाउ हियर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट. So capital always carries a credit balance. तो PCC partners capital account credit side में जाएगा, यानी PCC. Okay. Then creditors will go to liabilities. RDD, this is old RDD. ट्रायल बैलेंस में जब भी RDD दिया होगा तो वो हमेशा क्या रहेगा? ओल्ड RDD रहेगा. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला. सो P&L डेबिट साइड फॉर्मूला में जाएगा ये. ठीक है, ओल्ड RDD हमेशा फॉर्मूला में क्या होता है? लेस, राइट. नाउ सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सो TC. नाउ आउटस्टैंडिंग वेजेस. This point also I had emphasized in the last lecture, that whenever there is an outstanding prepaid given in the trial balance, there will be always only one effect, either asset or a liabilities. तो उसके लिए भी मैंने आपको शॉर्टकट समझाया था कि anything outstanding prepaid given on the debit side will always go to assets, and anything outstanding prepaid, okay, on the credit side will go to always liabilities. Okay, purchase return. So again less from purchases. So I will write minus and P, and I will put one tick mark on the purchases. So I've put it one red dot. Okay. Then lastly discount. It's a credit side. credit side में दिया है ये, तो P&L account credit side. Okay. ये हो गया हमारा trial balance का marking. Now one by one we will mark the adjustment also. The first adjustment is closing stock. Now closing stock में यहाँ पे सिर्फ एक ही हमें वैल्यू दिया है, तो यही हमें लेना है. क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या होगा ये आपको याद होना चाहिए और आपने अच्छे से नोट किया होना चाहिए. अगर आप प्रॉपरली फॉर्मेट में आपको नहीं पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट क्या है, तो आपको ये सम सॉल्व करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी. इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ हर वीडियो में, दैट डू राइट एवरीथिंग. ओके, यू कैन ऑलवेज रिफर द वीडियोज़, बट if you have written on your own, you will understand the things more betterly. Okay, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ पे जाता है? सबसे पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके,
और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। समझ में आया, ये मैंने यहाँ पे उसके इफेक्ट्स लिख दिए हैं, एसेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। देन इसमें क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में दिया नहीं रहता है, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी टिक मार्क करना नहीं है, राइट। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू दिस आइटम्स, एनी एडजस्टमेंट अगर आता है तभी हम उस पर टिक मार्क करेंगे, लाइक डेप्रिसिएशन, depreciate building and machinery at the rate 5% and 3% respectively. So we have to depreciate building and machinery. So what will be the effect of the same? First effect will go to profit and loss account debit side, and second effect will go to less from assets. Okay, so now I will put a tick mark on building, right, and I will put a tick mark on machinery. Okay, then bills receivable include dishonored bill of rupees 3000, bills receivable dishonored, bill cancelled हो गया, so bill cancelled हो गया तो क्या होगा, less from bills receivable, यानी bills receivable में से माइनस करना पड़ेगा. Okay, so I will just write over here less from bills receivable, यानी bills receivable मुझे कहाँ पे मिलेगा, assets में मिलेगा, ठीक है. और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, bills receivable यानी जिस समय पैसा लेना बाकी है, राइट. सो बिल कैंसल्ड हुआ है लेकिन वो अभी भी हमारा क्या है, डेटर्स. सो आई विल ऐड टू डेटर्स. सो ऐड टू डेटर्स, और डेटर्स कहाँ पे होता है, एसेट्स में ही होता है. सो आई विल पुट वन टिक मार्क ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड वन टिक मार्क ऑन डेटर्स, राइट. Alright. Then goods worth rupees 1000 taken by Daya for personal use was not entered in the books of accounts. Daya is our partner. He had withdrawn the goods for personal use. That means it is drawings. तो business में से goods गया, तो goods गया तो पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, trading account credit side. Okay, as goods is going out of the business, and partner is a debit the receiver, so partner's capital account debit side. अब यहाँ पे कोई भी गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स का कोई अकाउंट नहीं है, राइट. तो यहाँ पे कुछ भी मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट, राइट ऑफ रुपीज़ 1800 एज अ बैड डेट्स, यानी ये क्या हो गया, फॉर द बैड डेट्स, ठीक है. एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, दैट मीन्स दिस इज न्यू RDD. ये दोनों का इफेक्ट तो सेम ही रहेगा. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज that first effect will be P&L debit side formula, यानी कि PDF में जाएगा, and less from debtors. Okay, debtors कहाँ पे होता है हमारा, assets में होता है. Okay, alright, समझाइए आपको. So now debtors पे मुझे 2 tick mark करने हैं. Okay, so I will put a tick mark over here, 1 and 1 more, यानी 3 adjustments are on debtors till yet. Okay, next. ना PD फॉर्मूला में मुझे यहाँ पे बैड डेट्स पे कुछ भी मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एज आई एम गोइंग टू राइट द एंटायर फॉर्मूला, राइट. तो उसी में मेरी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी. ओके, द नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ रुपीज 6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नाउ गुड्स सोल्ड हुआ था लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अनरिकॉर्डेड सेल्स. ओके, सो अनरिकॉर्डेड सेल्स का इफेक्ट क्या होगा, सेल्स तो हुआ है तो सेल्स पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड, राइट. सो ऐड टू सेल्स. ओके, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, सेल्स हमने किसको किया होगा, डेटर्स को, सो ऐड टू डेटर्स. समझ में आया ये आपको, डेटर्स कहाँ पे होगा, एसेट्स में होगा, और सेल्स हमारा कहाँ पे होता है, TC में होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. So I will put one tick mark on sales and one more tick mark on debtors. So there are 4 adjustments on debtors. Now very important thing. Now here bad debts and RDD जो है वो 5th adjustment में दिया है, लेकिन जो 6th adjustment है वो भी debtors से related है. तो मैंने आपको 8th वीडियो में जो समझाया था कि डेटर्स पे सबसे पहले क्या होगा, एड और लेस अदर एडजस्टमेंट्स, यानी कि अनरिकॉर्डेड सेल्स और बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर वो हम सबसे पहले करेंगे, देन फर्दर बैड डेट्स, देन न्यू RDD. ओके, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. नाउ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, so our order for this question on debtors will be
पहले बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड का एंट्री आएगा, फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स का एंट्री आएगा, देन न्यू बैड देन फर्दर बैड डेट्स एंड देन न्यू आरडीडी। ओके, चलिए हम सम्स करते हैं तो इसके साथ साथ हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, कम से कम आप 12 से 15 लाइन का बना लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिनिमम 20 लाइन्स। Then partners capital account near about 7 to 8 lines, and balance sheet. You can make a each of the account on the separate page, or you can make like trading account आप एक पेज पे बना रहे हो, उसी के नीचे से P&L स्टार्ट कर दो और वो नेक्स्ट पेज तक जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पेज में जब आपके लास्ट में कुछ 8-9 लाइन बचेंगे तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल बना दो, और जो थर्ड पेज पे है वो आप क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ आवर पोस्टिंग फर्स्ट। इन द ट्रायल बैलेंस फर्स्ट थिंग इज गिवन इज ओपनिंग स्टॉक। ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक ही लिखना है, ठीक है। सो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जिस पे एडजस्टमेंट होगा उसी को हम इनर कॉलम में लिखेंगे, अदरवाइज आउटर कॉलम में लिखेंगे। सो ओपनिंग स्टॉक राइट इन द आउटर कॉलम 65,000। ऑलराइट, चलिए ओपनिंग स्टॉक के बाद हमें क्या दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल, उस पर एक डॉट है यानी कि एडजस्टमेंट है, राइट। तो बिल्स रिसीवेबल जाएगा एसेट्स में, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिल्स रिसीवेबल, ओके। इनर कॉलम में जाएगा 28,000, ओके, एंड आई हैव टू लीव वन लाइन, राइट। फिर वेजेस एंड सैलरीज है, सो वेजेस एंड सैलरीज कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ना ओपनिंग स्टॉक के बाद तुरंत क्या आना चाहिए, परचेसेस। Now as we have already marked the question, we know that purchases and purchase return है, ठीक है। अब शायद आपको याद ना रहे कि परचेज में रिटर्न था या नहीं था, राइट। सो ऑलवेज लीव 2 लाइन्स ओवर हियर, ओके, और अदरवाइज यू कैन राइट फर्स्ट परचेसेस ऑल्सो हियर, बट अब आगे पीछे जितना जाने की कोशिश करोगे, स्किप करोगे चीज़ें, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ मिस होने के चांसेस हैं। सो बेटर गो इन अ सीक्वेंस वाइज ओनली, ओके। So here I will just skip the 2 lines and I will write 2 wages and salaries. Okay, so wages and salaries. There's no adjustment on wages and salaries. The amount is 9,000 in the outer column. All right. Then there's a sundry debtors. Now sundry debtors will go to assets. So sundry debtors. For one adjustment, I have left 1 line. But for 4 adjustments, better leave 8 lines. Okay, so 1,32,500 inner column and leave 8 lines. Okay, then there is a bad debts. Now bad debts हमें कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑलवेज लीव फर्स्ट लाइन ऑन बोथ द साइड, डेबिट एंड क्रेडिट, बिकॉज हमें नहीं पता कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखिए 2 बैड डेट्स। ना बैड डेट्स का पूरा फॉर्मूला भी आपको लिखना है, इनर कॉलम में लिखो बैड डेट्स 1000। देन बैड डेट्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 बैड डेट्स ऐड क्या आएगा, फर्दर बैड डेट्स, ओके। उसके बाद क्या आएगा, ऐड न्यू आरडीडी, ओके। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए बैलेंस के लिए, और उसके बाद आएगा लेस ओल्ड आरडीडी, राइट, ओके। तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है। बैड डेट्स हमें ट्रायल बैलेंस से मिलता है, ओल्ड आरडीडी भी हमें ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, ओके। और फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी हमें कहाँ से मिलेगा, एडजस्टमेंट। सो ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, ये चीज़ हमें भूलनी नहीं है, ओके। नाउ परचेसेस, सो 2 परचेसेस in the second line after opening stock, 2 purchases. Value of purchases is 1,48,000 inner column as there is purchase returns. Then उसके बाद हमें क्या दिया है, मोटर कार। मोटर कार will go to assets. I have to leave 8 lines for sundry debtors. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So मोटर कार पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट राइट डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम 68,000। आप यहाँ पे बेटर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ओके। सो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। सी थोड़ी सी मेरे लिए डिफिकल्ट पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे पेंसिल पेन जैसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, सो आई कैन नॉट पुट अ टिक मार्क ओवर हियर। सो बेटर यू जस्ट
आफ्टर लिविंग वन लाइन अंडरलाइन कर दीजिए कीजिए, तो आपका वहाँ पे कुछ भी लिखने का गड़बड़ होगा नहीं. ओके. Then machinery. Machinery will go to asset and there is an adjustment on machinery. The value of the machinery is 1,14,800. Okay. Then audit fees. Audit fees will go to profit and loss account, debit side to audit fees. So 1,200 outer column. There is no adjustment on audit fees. Sales return. So here in the first line, I will write by sales. I will not mention the value. I'll go in a proper order. I will just write over here less sales return, and there are two adjustment on sales, right? So sales return का मैं value सिर्फ यहाँ पे लिख देती हूँ 2000. ठीक है. फिर मुझे और दो लाइन्स छोड़ने पड़ेंगे बिकॉज वहाँ पे बैलेंस भी आएगा. फिर उसके बाद जो नया एडजस्टमेंट है वो, तो जब दो एडजस्टमेंट्स होते हैं तो वी रिक्वायर्ड मिनिमम 3 लाइन्स. ठीक है. और अगर आप एडजस्टमेंट के हिसाब से डबल लाइन छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दो के लिए अगर आपने 4 लाइन भी छोड़ दिया दो एडजस्टमेंट्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक लाइन अगर उसमें बीच में एक्स्ट्रा रह गई ब्लैंक तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ओके. देन डिस्काउंट. सो ऑन द P&L डेबिट साइड टू डिस्काउंट. आउटर कॉलम में वैल्यू जाएगा डिस्काउंट का बिकॉज उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट इज 2300. देन बिल्डिंग विल गो टू एसेट्स. सो मशीनरी के बाद मैं एक लाइन छोड़ देती हूँ क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है. बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है. बिल्डिंग का वैल्यू है 75,000 आउट इनर कॉलम. ओके. लीव वन लाइन. देन कैश एट बैंक. सो इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट बट उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सो 12,000 आउटर कॉलम. ओके. देन 10% इन्वेस्टमेंट. नाउ 10% इन्वेस्टमेंट I have to write, and on this hidden adjustment is there, but in the last lecture itself I had explained you कि इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट होता है वो हमें सेपरेटली लिखना होता है, उसमें ऐड नहीं होता है. और हिडन एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे साथ में ही करते जाएंगे वरना फिर वो मिस होने के चांसेस बहुत रहते हैं. ठीक है. सो अभी 10% है 20,000 पे. फुल ईयर का है बिकॉज डेट इज नॉट गिवन, राइट. सो हमारे पास ये पहले से ही होगा. सो 2,000 रुपीज़ होता है इंटरेस्ट ऑन अगर हम 10% के हिसाब से 20,000 पे निकालते हैं तो. ओके. सो एक इफेक्ट मेरा कहाँ पे जाएगा एसेट में ही जाएगा तो मुझे यहीं पे लिख देना है. उसके नीचे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बैंक लोन में हम ऐड करके लिखते हैं. यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ऐड नहीं करना है, आपको सेपरेटली लिखना है. सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 2,000. ठीक है. नाउ इसी का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. वहाँ पे भी मैं फर्स्ट लाइन छोड़ दूंगी. सो बाय इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट. जो हिडन एडजस्टमेंट रहेंगे उसका इफेक्ट तुरंत ही कर दिया करो अदरवाइज हम भूल ना जाए. ठीक है. नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस. सो टू एडवर्टाइजमेंट इनर कॉलम 4,500. नाउ ये भी हिडन एडजस्टमेंट है तो इसको भी हम तुरंत अभी कर देंगे. नाउ 4,500 जो है राइट वो हमारा 9 मंथ्स का पेमेंट है. ओके. यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट बना देती हूँ. सो एडवर्टाइजमेंट जो है वो 4,500 है फॉर 9 मंथ्स. सो डिवाइड बाय 9 मंथ्स करो आप, राइट. तो आपको आंसर क्या मिलेगा 9 5 45 बराबर है. तो 500 वैल्यू हुआ पर मंथ हुआ. ठीक है. और मेरा कितने मंथ्स का ड्यू है 3 मंथ्स का ड्यू है. सो यानी मुझे अभी भी कितना पे करना बाकी है 1,500 पे करना बाकी है, राइट. सो 1,500 इज माई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. सो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होगा एड. सो एड आउटस्टैंडिंग 1,500 में यहाँ पे ऐड कर दूँ तो मेरा आउटर कॉलम में वैल्यू कितना जाएगा 6,000 of the advertisement total expenditure. Now 1,500 is payable. So on the liability side I will leave 5 lines. 5 लाइन में छोड़ देती हूँ कैपिटल बैलेंसेस लिखने के लिए. उसके बाद से मैं लिख दूंगी
आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, ओके, 1500 आउटर कॉलम में जाएगा। मेरा जो 3 मंथ्स का वैल्यू आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटीज में जाएगा, पूरा 6000 नहीं जाएगा। ओके, क्लियर विथ दिस, एंड नो शॉर्टकट्स टू बी यूज्ड। जैसे मैंने आपको यहाँ पे आरडीडी वगैरह यूज़ किया है, बस वही यूज़ करना है, अदरवाइज कोई शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। Now royalties will go to trading account debit side, outer column 3000, as there is no adjustment on it. Okay, चल नेक्स्ट डेबिट साइड का पोस्टिंग हो चुका है, अभी क्रेडिट साइड। जनरल रिजर्व विल गो टू लायबिलिटीज, so after this I will write general reserve. There is no adjustment on general reserve. Okay, so amount is 14,500, outer column. Then capital, now I have made a partners capital account, right, जहाँ पे मैंने ये सब नाम लिख दिए हैं। और कैपिटल अकाउंट बन रहा है, जैसे हम लोग कैश बुक बनाते थे तो उसमें कैश या बैंक कॉलम है, उसके ओपनिंग बैलेंसेस दिए, तो कैपिटल हम लोग एक छोटा सा एक लेजर अकाउंट बना रहे हैं, तो उसमें उसका नाम कभी नहीं लिखेंगे, और ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऑलवेज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों पार्टनर्स के अलग अलग कॉलम्स है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,60,000 एंड 1,20,000। ऑलराइट, ठीक है, ये हो गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ क्रेडिटर्स विल गो टू लायबिलिटीज। नाउ देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर्स, so outer column 98,000. Alright, then next is RDD. This is old RDD, so I have written the formula. So in front of the old RDD you have to write the value in the inner column 1,800. Okay, then next is sales. Sales will go to trading account credit side, as I have already written by sales, but I have to just write 2,85,500. अब उसमें से 2000 मुझे क्या करना है, माइनस, सो 2,83,500, and still one line is required because one more adjustment is there on sales apart from returns. Okay, then outstanding wages. So outstanding wages will go to liabilities. Outstanding wages 700, outer column, as there is no adjustment. Purchase return will be minus from purchases, so right over here less purchase return. The value is 4,000. Okay, apart from purchase return there is no adjustment on purchases, so 1,48,000 minus 4,000, it becomes 1,44,000 in the outer column, ठीक है। Then discount, क्रेडिट साइड में दिया है तो P&L क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय डिस्काउंट साइड कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, डेबिट का डिस्काउंट डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का डिस्काउंट क्रेडिट में जाएगा। ओके, so 1,800 by discount. So here we are done with the posting as well as the hidden adjustment. Now we have to do the adjustment parts. So the first adjustment is closing stock. Now closing stock, first effect will go to asset. Okay, so in asset side I will write closing stock 40,000, outer column, बिकॉज मुझे यहाँ पे कहीं पे भी क्लोजिंग स्टॉक को ऐड या लेस नहीं करना होता है, तो एक एसेट में इफेक्ट जाएगा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सो मैं क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ा फोर्थ लास्ट लाइन में ही लिखूंगी, ताकि मुझे क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो एट द एंड ही कैलकुलेट होता है आफ्टर स्टॉक वैल्यूएशन। सो यहाँ पे बीच में जो भी गुड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगे वो मैं पहले लिखूंगी। ओके, सो बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम में जाएगा 40,000, तो फोर्थ लास्ट लाइन में आप लिख दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, 40,000 आउटर कॉलम हो गया हमारा ये फर्स्ट एडजस्टमेंट। नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट बिल्डिंग ओके एंड मशीनरी 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। तो यानी पहले मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा एसेट्स पे से, राइट। तो पहले मुझे बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है, लेस 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली बोला है, तो 5% इज ऑफ building, so 5% depreciation. Now we have to calculate 5% on 75,000. Okay, so the value will be 3,750.
कितना वैल्यू होगा 3750। ओके 75,000 में से 3750 हमें माइनस करना है। सो 71,250 विल बी आर बैलेंस। ओके सो वो हमें आउटर कॉलम में लिखना है। देन उसके बाद मशीनरी पे हमें 3% कैलकुलेट करना है। सो लेस 3% डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स आप लोग इजीली कर सकते हो कि 75,000 इंटू 5/100 करके भी कर सकते हैं। वैसे ही मशीनरी पे भी यहाँ पे आप 1,14,800 इंटू 3/100 करके कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। सो ऑन 1,14,800 पे हमारा जो डेप्रिसिएशन आएगा दैट विल बी 3,444। ओके सो 3,444। आप ये सारे कैलकुलेशंस खुद से कीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके सो आउटर कॉलम में हमारा बैलेंस हो जाएगा 1,11,356। राइट नाउ ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पे मुझे लिखना है 2 डेप्रिसिएशन ऑन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगी बिल्डिंग। बिल्डिंग पे मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो गया 3750 इनर कॉलम। उसके बाद मशीनरी, उसका अमाउंट हो गया 3,444। तो ये दोनों का डेप्रिसिएशन मिलके आउटर कॉलम में जाएगा 7,194। ओके ये इसीलिए मैंने इनर कॉलम में लिख दिया ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। जितना आउटर कॉलम में हमारे पास कम वैल्यूज होंगे उतना हमें कैलकुलेशन में इजी होगा। ठीक है समझ में आया ये आपको, राइट। अभी बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल ऑफ ₹3,000। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो चुका है तो बिल्स रिसीवेबल में से क्या होगा माइनस। सो लेस बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। बिल डिसऑनर्ड हुआ है तो वही हमें लिखना है। बिल डिसऑनर्ड हुआ 3,000 रुपीज़ का। सो 28,000 में से 3,000 माइनस होगा तो बैलेंस आउटर कॉलम में कितना जाएगा 25,000। इस पे एक ही एडजस्टमेंट था तो आउटर कॉलम में वैल्यू ट्रांसफर हो गया। नाउ यहाँ पे क्या होगा ऐड, ऐड बिल डिसऑनर, क्योंकि अभी भी हमें उससे पैसा लेना तो बाकी है, राइट। सो ऐड बिल डिसऑनर 3,000 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो गया। तो उसके बाद वैल्यू हमारा क्या हो गया 1,35,500। ओके ये हमारा वैल्यू हो गया। ऑलराइट अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है goods worth ₹1,000 taken by Daya for personal use was not entered in the books of accounts. Goods withdrawn by partner for personal use. So goods withdrawn by partner है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी by goods withdrawn by Daya. Okay you can write for personal use as well but अगर आपने इतना भी लिखा तो more than enough है। by goods withdrawn by Daya 1,000 outer column, then partner is a debit the receiver। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 ड्रॉइंग्स, ठीक है। 1,000 दया के कॉलम में जाएगा। ओके और ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिखो गुड्स विथड्रॉन। ओके चलिए नेक्स्ट है राइट ऑफ ₹1,800 एज बैड डेट्स। बट हम लोग ये फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट अभी नहीं कर सकते हैं बिकॉज और एक अदर एडजस्टमेंट बाकी है। तो डेटर्स पे हमें सबसे पहले क्या कंप्लीट करना है अदर एडजस्टमेंट्स। तो बिल डिसऑनर्ड अनरिकॉर्डेड सेल्स ये सब अदर एडजस्टमेंट्स हैं। तो पहले हम अदर एडजस्टमेंट जब करेंगे तभी हमें फाइनल अमाउंट ऑफ हमारा क्या मिलेगा डेटर्स। जब फाइनल अमाउंट ऑफ डेटर्स मिलेगा तभी उसी में से हम बैड डेट्स माइनस कर सकते हैं और नया रिजर्व उस पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है तो सबसे पहले हमें सिक्स्थ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यानी कि अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो डेटर्स में ऐड हो जाएगा ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। ओके 6,000। सो मेरा टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,41,500। ऑलराइट देन सेल्स में भी मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मेरा सेल्स का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। सो ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। अगर आप ये सभी एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स लर्न नहीं करोगे तो आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके
सो यहाँ पे आउटर कॉलम में मेरा सेल्स का वैल्यू हो जाएगा 2,89,500। ऑलराइट, ठीक है। अभी मैं फिफ्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट कर सकती हूँ। ना फिफ्थ एडजस्टमेंट में भी सबसे पहले मुझे क्या लेना है, फर्दर बैड डेट्स लेना है। तो सबसे पहले डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस हो जाएगा, क्योंकि इतना हमारा और नुकसान हो चुका है, इतना पैसा डूब चुका है। सो फर्दर बैड डेट्स 1,800 आई विल माइनस from the debtors. Okay, so if I'll minus 1,800 from the debtors, my value will be 1,39,700 in the inner column. 1,39,700. Okay, now on this value, on 1,39,700, I have to calculate new RDT. Now this is the net debtors which is receivable, but still I doubt that 5% I will not get money from this. So less 5% new RDD. Okay, so new RDD on 1,39,700 I have to calculate. Be careful about this. You are not supposed to calculate on 1,32,500 or neither of any other value. ठीक है, सबसे पहले अदर एडजस्टमेंट्स, उसके बाद फर्दर बैड डेट्स माइनस करो, उसके बाद जो हमें नेट डेटर्स मिलता है ये 1,39,700 पे हम लोग 5% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जब आप इस पे कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 6,985। ओके, अब इसे माइनस करो। अब फाइनली आउटर कॉलम में हमारा वैल्यू जाएगा, दैट इज 1,32,715। ऑलराइट, चार एडजस्टमेंट जो मैंने मार्क किए थे हो गए, बिल डिसऑनर्ड, अनरिकॉर्डेड सेल्स, फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू आरटीडी। नाउ ये जो फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू आरटीडी है, इसको मुझे कहाँ पे प्लेस करना है, फॉर्मूला में। सो फर्दर बैड डेट्स मेरा कितना है, 1,800। न्यू आरटीडी मुझे कितना मिला, 6,985। ठीक है, अब इन सब का टोटल मुझे करना है, राइट। सो मेरा यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 1,000 प्लस 1,800 एंड प्लस 6,985। सो माई टोटल विल बी 9,785। ऑलराइट, 9,785 में से 1,800 मुझे क्या करना है, माइनस, क्योंकि मेरा पुराना आरटीडी है जो मेरा लास्ट ईयर यूटिलाइज नहीं हुआ, तो मेरे लिए फ़ायदा हो गया। इस साल का मेरा लॉस है 9,785, लेकिन पिछले साल की मेरी सेविंग्स है, तो लॉस में से इस मैंने सेविंग्स क्या कर दी, माइनस। तो फाइनली मुझे बैड डेट से कितना लॉस हो रहा है, 7,985। ऑलराइट, समझ में आया ये आपको, ठीक है। Now all the adjustments we have completed. Now we have to start closing the account. First we will close the trading account. Okay, so in trading account, first I have to write the total. Alright, now total has to be in the same line, आगे पीछे नहीं चलेगा। Okay, so total किसका होगा, outer column का। So you have to check which side is higher. तो आप टोटलिंग कैसे करोगे, हमेशा अमाउंट इस तरीके से लिखो कि यूनिट्स के नीचे यूनिट्स आना चाहिए, तो आप यहीं पे कैलकुलेशन बहुत इजीली और अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अगर आप टोटल करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो हमें क्रेडिट साइड ज़्यादा मिल रहा है, राइट। क्रेडिट साइड का मेरा टोटल हो रहा है 3,30,500। ठीक है, 3,30,500 मेरा यहाँ पे क्रेडिट का टोटल है। ऑलराइट, अब 3,30,500 में से मुझे यहाँ का टोटल, डेबिट का टोटल क्या करना है, माइनस करना है, राइट। सो मेरा ये जो टोटल आ रहा है वो 2,21,000 आ रहा है। ठीक है, आप पेंसिल से चाहिए तो आप दोनों जगह पे यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। ओके, टोटल, तो आपको कंपैरिजन में इजी हो जाएगा। यू कैन राइट हियर। ओके, सो 2,21,000 मेरा जो ये टोटल है वो 3,30,500 में से क्या हो जाएगा, माइनस। सो आई विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 1,09,500। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रांसफर टू प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट क्लोज। ओके, और ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिला है, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आया है, यानी कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आया है, उसमें से डेबिट का एक्सपेंस मैंने माइनस करके मुझे क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट मिला। अब ये डेबिट में डिफरेंस आया है तो मुझे यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे उसे क्या करना है, ब्रॉट डाउन। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,09,500। ठीक है, अभी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पे सेम वापस मैं लिख देती हूँ टोटल ऑन बोथ द साइड। ठीक है, नाउ अगेन आई हैव टू चेक विच साइड इज हायर। नाउ यहाँ पे क्रेडिट साइड में 1,09,500 जितनी बड़ी वैल्यू है, और उतनी बड़ी वैल्यू मुझे कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिख रही है। सो मेरा क्रेडिट का ही टोटल ज़्यादा होना चाहिए, तो मेरा क्रेडिट का टोटल होता है 1,13,300। ठीक है, सो 1,13,300 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, दोनों तरफ मैंने टोटल में लिख दिया। अब मेरा डेबिट का टोटल क्या आ रहा है, मेरा डेबिट का टोटल आ रहा है 24,679। ठीक है, मेरा ये एक्सपेंस का टोटल है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आई एम जस्ट शोइंग यू। सो 1,13,300 में से 24,679 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, प्रॉफिट मेरा हो रहा है 88,621। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है मेरा, 88,621। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आपको क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके भी दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ब्रैकेट में ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और दोनों पार्टनर्स के मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, नाम, दया और क्षमा। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो हमने क्या पढ़ा था, 1:1 है, तो 1:1 मतलब क्या हुआ, इक्वल। तो अब उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेट प्रॉफिट है आपका 88,621, तो उसे आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दो। सो डिवाइड बाय अगर आप 2 करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, राइट, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा ओके 2, 4 4 क्या हो रहा है आपका 3, और फिर 1 आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन नहीं चलेगा, तो क्या होगा 0, और फिर पॉइंट आगे आपके आके करके आपको क्या करना पड़ेगा, ओके डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5, बराबर है। तो यहाँ पे एक पर्सन को, एक पार्टनर को आपको 1 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, दया को 1 रुपया ज़्यादा दे दूँगी, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, 44311 और 44310, 44311 और 44310। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा। 88,621 को हमने क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया। अब मुझे इसे मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 1 करूँगी तो आंसर यही आएगा। अब यहाँ पे ये 0.5 आंसर आया है, तो मुझे किसी एक को 1 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेरे टोटल में प्रॉफिट में देखोगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, 621 आ रहा है। अगर ये 620 होता तो दोनों को 1010 हो जाता, लेकिन 1 रुपये का डिफरेंस है, तो 0.5 आया, तो मैंने दया को ज़्यादा दे दिया बिकॉज उसका कैपिटल वैल्यू ज़्यादा है। तो किसी एक भी पार्टनर को आप दे सकते हो, आप क्षमा को भी 1 रुपया ज़्यादा दे सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, देन अभी हमें ये करना है, ये प्रॉफिट को ट्रांसफर कहाँ करना है, पार्टनर्स कैपिटल में। तो ये डेबिट साइड में डिफरेंस आया, तो अगेन ये यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। ओके, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दैट इज 44,311 और 44,310, वो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब वैसे ही हमें यहाँ का भी अकाउंट क्या करना है, क्लोज करना है, तो बोथ द साइड हम टोटल लिखेंगे। नाउ कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही ज़्यादा आएगा, डेबिट बैलेंस कभी भी ज़्यादा आएगा नहीं। तो अगर हम टोटल करेंगे तो इसका आएगा 2,04,311। ठीक है,
और इसका अगर आप टोटल करोगे तो आएगा 1,64,310। ऑलराइट, तो ये दोनों ही टोटल सेम है। यहाँ पे मैं इसे लिख देती हूँ सेम टोटल। नाउ 2,04,311 में से 1,000 मुझे माइनस करना है, तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा 2,03,000। ओके, 311। ओके, और यहाँ पे तो कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, यहाँ पे तो उसका कुछ भी था ही नहीं, राइट। सो यहाँ पे 1,64,310 ये मेरा क्या हो गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन। समझ में आया? जैसे हम लोग लेजर अकाउंट में क्लोजिंग करते थे, वैसे ही मैंने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग किया है। तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये टोटल ज़्यादा आया, ये माइनस करने के बाद जो डिफरेंस मिला वो मेरा क्या है, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, वो ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे लायबिलिटीज़ में। ये डेबिट में डिफरेंस आया, ठीक है, तो ऑपोजिट साइड जाना चाहिए, तो ऑपोजिट लायबिलिटीज़ यानी कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। मुझे यहाँ पे लिखना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऑफ दया और क्षमा। ठीक है, नाउ कैपिटल मुझे कितना मिला, 2,03,000। टोटल का वैल्यू गलती से नहीं लिखना है, बैलेंस कैरिड डाउन का वैल्यू लिखना है, 2,03,311 और 1,64,310। तो इन दोनों का अगर आप टोटल बाहर के कॉलम में लिखोगे तो द टोटल विल बी 3,67,621। ऑलराइट, समझ में आया ये, राइट। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट में डिफरेंस आया तो क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया, नेट प्रॉफिट हमें जो डेबिट में मिला वो हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया। वैसे ही बैलेंस क्रेडिट डाउन हमें डेबिट में मिला तो हमने क्रेडिट में ही ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। समझ में आया ये आपको? ठीक है, अभी आपको क्या करना है, बैलेंस शीट का टोटल करना है, और बैलेंस शीट का टोटल हमने दोनों सभी ट्रांजैक्शन यानी जितने भी एडजस्टमेंट्स है वो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से डेबिट क्रेडिट इफेक्ट्स दिए एडजस्टमेंट्स के, और ट्रायल बैलेंस का भी हमने पोस्टिंग वन इफेक्ट देके प्रॉपर्ली से कंप्लीट किया है। तो होपफुली हमारा फाइनल अकाउंट भी क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, सो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इज 4,82,321। ठीक है, सो यही टोटल मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ और आप ये मैच करके भी देख लीजिए। समझ में आया ये आपको? ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आप जितना अच्छे से आपके जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं उसके अगर आप इफ़ेक्ट्स लर्न कर लोगे, पोस्टिंग्स अच्छे से ध्यान में रखोगे, तो ही आपके लिए फाइनल अकाउंट थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर आपको इसमें डाउट है, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप watching, keep sharing, take a very good care of yourself and your family. Thank you so much.